everyone and welcome back. This is Mamta Verma and today I'm going to start the next literary theory of feminism. So here we will study each and every uh, concept which is related to feminism. So what is the reason that the feminism emerges? Okay. So mainly the feminism that is a movement, we can say a war against the liberation of the women. Okay, so it was started in 1916. Okay, and it is a war against the liberation of the women, against the inequality of the women in every field, in social, political, cultural, economical, in every field. Women were suffering because of the lack of education, because of the lack of fundamental rights. Okay, because of the lack of basic rights, they had not given even a single opportunities to raise their voice. Okay, so the one of the biggest reason why the women are suffering is the lack of education. They are totally dependent on the men for their physical, mentally, economical, all of these sources. They are totally dependent on the men, and that is the big advantage for the men, that they are suffering. Okay, so let's begin. Feminism, which was started in 1960. Okay, so it is a war against the inequality of the women in every field. We can say it is social, cultural, economical and political. Every field women has not given any equality with the men's. That's why that movement is a start. So first we have to know about the waves of the feminism. So mainly we talk about the three waves. Okay, mainly the most important is three waves, but sometimes we also know about the fourth wave of the feminism. So mainly हम fourth wave पढ़ सकते हैं. Fourth wave of the feminism. Four waves of feminism. Okay, so four wave फेमिनिज्म में फर्स्ट वेव आता है. फर्स्ट wave of feminism. Okay, so it was started in 1819 to 1960. Okay, so that is first wave, and here the women is demanding for the basic fundamental rights. Okay, so it is the wave against the fundamental rights for the women. Fundamental rights. Okay, fundamental rights like right of education. Okay, right to vote. Okay, and the right to divorce. Okay, and right to property apart from her husband. Okay, so these are first where we talk about the basic fundamental right, that before 1819. Okay, the women has not given even the basic fundamental right. Okay, basic fundamental right means the women had not given the right to get education. Okay, to cast vote, to take divorce if the women were suffering. Okay, if the women were suffering after their marriage due to their husband, yeah, due to the family of the husband, so even she could not have the right to take the divorce. Okay, if the woman is suffering, then he is suffering continuously, and there is no any law for the women that they can take advantage, they can raise their voice against the violence. Okay, so there is no kind of rights made for the women. Okay, so in the first wave, the women's, all the feminist critic demand for the fundamental rights for the women. Okay, so इसमें आता है right of the education, right to vote, divorce, property apart from husband, means if the women get married. Okay,
and after that the women is suffering any reasons, then they can take divorce from their husband, okay. And if she has any child, then she has given the right to take the property apart from their husband. So these are all rights that the women's demand in the first wave, okay. Next we there is a second wave, okay. Second waves of feminism, okay. So second wave of feminism है वो 1960 to 1990 तक आई थी, ठीक है. So here the women talk about the equality, okay. Equality in job, okay. Reproductivity, and domestic violence, okay. So जो सेकंड वेव फेमिनिज्म है वो बेस्ड है कि women has given the right to take a salary equal to the man, okay. So यहाँ जो क्या होता था 1960 या उससे पहले क्या होता था कि जो मैन और वीमेन्स है वो सेम फील्ड में काम करते हैं, ठीक है. सेम हावर्स उसी काम को देते हैं, जैसे ये 6, 7 या 8 हावर्स अगर मेल कर रहा है तो उतने ही हावर्स फीमेल करती थी, ठीक है. तो उनका काम करने के घंटे सेम होता था, ठीक है. काम सेम होता था, जगह सेम होती थी, लेकिन वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो उनकी वेजेस पे होता था, ठीक है. जो डिफरेंस था वो एक बड़ा डिफरेंस था कि जो औरतें थी उनको उतना जो सैलरी नहीं दी जाती थी जितनी की मैन को दी जाती थी. और ये माना जाता था कि जो वीमेन है वो फिजिकली वीक होती है, मेंटली भी वीक होती है. तो उनका मानना था कि वीमेन है वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाती जितना कि मैन कर पाते हैं, ठीक है. तो उस टाइम में जो मैन की जो सुपीरियरिटी थी, पैट्रियार्की जिसको कह सकते हैं, ठीक है. एवरी फील्ड में जो कंट्रोल कर रखा था पैट्रियार्की ने, वो इतना डोमिनेंट कि डीपली रूटेड था उनके माइंड में कि हर काम को सिर्फ मैन ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, या हर फील्ड में मैन ही है जो कि स्ट्रॉन्ग है. So उनका मानना था कि women are made only to live inside the four wall of the house, okay. If they are performing, then they are not equally performing with the man, okay. So ये था उनका मानना. तो उन्होंने सेकंड वेव फेमिनिज्म में जो फेमिनिस्ट क्रिटिक थी उन्होंने डिमांड की कि जो महिलाएं हैं, जो women हैं, उनको भी मैन के इक्वली वेजेस दी जाए, ठीक है. Reproductivity means when the women wants to get child, when the women wants to give birth child, okay. So this right is also given to the women, that it is his desire that when he will get birth to their child, okay. So what is the right time to give the birth of their child, okay, and how many child she wants to give birth. तो ये रिप्रोडक्टिविटी, इसका राइट मतलब उनको ये अधिकार भी दिया जाए कि जो विमेन्स है वो जो प्रोडक्शन करती है, मतलब उनको जो बच्चा पैदा करने का अधिकार है, वो विमेन्स को ये दिया जाए कि किस टाइम वो बच्चा पैदा करना चाहती है, क्या उम्र में चाहती है, ठीक है, या कितने बच्चे चाहती है, ठीक है. तो ये उसकी मन मर्जी के खिलाफ न हो कि जेंट्स इतना चाहते हैं तो वह इतना ही करेगी, उस टाइम पे चाहती है तो इतना करेगी. अगर वीमेन्स बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो ये भी उसी के हित में होना चाहिए, वो नहीं चाहेगी, ठीक है. तो ये था रिप्रोडक्टिविटी का. डोमेस्टिक वायलेंस अगर वीमेन्स घर गृहस्थी में सफर कर रही है फैमिली मेंबर या मेंस के कारण, तो ये भी उनको अधिकार दिया जाए कि वो अपनी आवाज़ है वो उनके खिलाफ उठा सके, ठीक है. तो ये सब राइट की बात की उन्होंने सेकंड वेव फेमिनिज्म में. नाउ थर्ड वेव फेमिनिज्म की बात करते हैं, ठीक है. नाउ थर्ड वेव फेमिनिज्म है, थर्ड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ओके. It starts from 1990 to 2005 या 10 से लगा सकते हो, ठीक है. सो ये थर्ड वेव फेमिनिज्म था और ये इसने मेनली फोकस किया लिमिटेशन ऑफ द सेकंड वेव फेमिनिज्म,
limitation of the second wave feminism, ठीक है। एंड सेकंड है नॉन वाइट एथनिसिटी, नॉन वाइट एथनिक पीपल, मीन्स जो व्हाइट पीपल के अलावा जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने राइट मांगा कि उनको भी राइट दिया जाए, ठीक है। इस टाइम में ग्लोबलाइजेशन आ गया था, ठीक है। टेक्नोलॉजीज आ गई थी काफी, ठीक है। तो विमेन्स ने माना कि वॉट एवर द विमेन्स वांट्स टू डू they can do. The women have given the right that what the women wants to do they can do. Okay, so मेनली जो थर्ड वेव फेमिनिज्म था वो 1990 से 2005 में आया था। तो उस टाइम में टेक्नोलॉजीज आ गई थी, कंप्यूटर्स का एज आ गया था, तो थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट था वो डेवलपमेंट काफी हुआ था, हर फील्ड में हुआ था थोड़ा, ठीक है। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म है, इसमें जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है उन्होंने डिमांड की कि जो नॉन वाइट या जो ब्लैक वीमेन थी, ओके, ब्लैक वीमेन सफरिंग डबल, दे वर सफरिंग डबल, व्हाई? बिकॉज फर्स्ट दे आर वीमेन एंड सेकंड दे आर ब्लैक। सो दोनों तरह से वो सफर कर रही थी, ठीक है, दोनों तरह से लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म है मेनली वो सेकंड वेव फेमिनिज्म है उसकी लिमिटेशन के अगेंस्ट आया था, क्योंकि सेकंड वेव फेमिनिज्म था उसमें जो राइट टू इक्वालिटी ऑफ द जॉब या राइट टू रिप्रोडक्शन, ओके, ये सब है वो सिर्फ जो अपर क्लास वाइट पीपल था उन्होंने तो उसको फॉलो किया। सेकंड वेव फेमिनिज्म में जो भी राइट्स मैन ने मांगे उसमें क्या है कि ये अपर क्लास के जो लोग थे, जो रिच थे, जो वाइट पीपल थे, उन्होंने उनको फॉलो किया। लेकिन जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास में जो वीमेन थी वो उसी तरह से सफ़र कर रही थी, उनमें कोई चेंजमेंट, उनकी जो कंडीशन थी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो उसके खिलाफ ये आया था कि जो नॉन वाइट वीमेन थी उनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाए, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने माना कि विमेन्स हैज गिवन द राइट, गिवन द फ्रीडम दैट व्हाटएवर दे कैन डू, whatever they wants to do they can do, okay, there will be no restriction, there will be no pressures on the women's that they should do that kind of work, that they should not do that kind of work, okay। जो कुछ भी विमेन्स करना चाहती है अपनी इच्छा से, अपने डिजायर से वो कर सकती है, वो कैसी भी जॉब हो, चाहिए नहीं कि विमेन्स के लिए सिर्फ एक घर में रह के या जो डोमेस्टिक वर्क होता है वही परफॉर्म करे, या वुमेन्स के लिए एक सिर्फ टीचिंग लाइन ही बनी है। अदर जो लाइन है जैसे कि फैक्ट्रीज में काम करती है, कंपनीज में या अदर सेक्टर में जो विमेन है वहाँ उनके लिए वो जॉब अच्छी नहीं है सब। तो विमेन्स जो चाहेगी, जिस फील्ड में काम करना चाहेगी, उनको ये फ्रीडम दिया जाए कि वो जिस फील्ड में जाना चाहती है वो उसी फील्ड में जाएगी, ठीक है। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म था ये इस पे था, ठीक है ना। फोर्थ वेव फेमिनिज्म भी आया था, फोर्थ वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ओके। सो ये 2005 या 10 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ आके तो काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका था। तो यहाँ मेनली जो फोकस किया गया उन्होंने राइट टू जस्टिस अगेंस्ट फिजिकल हैरेसमेंट, ओके, या जस्टिस अगेंस्ट सेक्सुअल इमेज ऑफ ए फीमेल बाय मीडिया, ओके, इट इज इट। तो 2005 और 10 में यहाँ क्या था कि रेप केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे थे, हॉलो क्लासेस में से लड़कियों को छेड़ना, ठीक है, उसके साथ फिजिकल हैरेसमेंट का केस ज़्यादा हो रहे, तो ये सब केस ज़्यादा बढ़ने लगे थे इस टाइम तक। तो उन्होंने इस बात के लिए भी डिमांड की कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको
कि इस केस में फिजिकल में या रेप केसेस जो होते हैं, रेप जो केसेस होते थे वो इस टाइम में काफी बढ़ रहे थे, तो उनके खिलाफ भी लेडीज है वो अपनी आवाज उठा सके, ठीक है। तो फोर्थ वेव फेमिनिज्म था वो इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये था फेमिनिज्म की वेव्स एंड गाइस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। each and every waves is very important. They can ask you the time, okay, first wave feminism, yeah, they can ask the question that basic fundamental rights in which waves is demanded by the feminist critic, okay, that type of question is asked in the exam. So you have to read each and every waves deeply, okay. So that's all in today's class, and next class we will going to read that type of feminism, okay. सो कितने टाइप का फेमिनिज्म होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे।